ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 625 ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 626 ਅੰਗ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਧਰਮ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਧਨ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ। ਮਰਹਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਨ ਛਾਪੜੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਜੀ
गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। सतगुर महाराज उत्थे पहुँचते आ ते उत्थे पहुँच के गुरबाणी च शब्द एक उच्चारण किया, भली सुहावी छापरी जामह गुण गाए। छापरी के अर्थ ने छपड़ी कुल्ली। सतगुर महाराज कहते ने कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए। वो धौल हर कहते ने पक्के वड्डे महल मरगे मकाना नूं। सतगुर महाराज कहते वो किते भी काम नहीं जेकर रब भुल गया है। तुसी कभी ग्वालियर जाओ, उत्थे एक महल है जिन्हों कहते हैं विलास राव पैलेस। विलास राव ग्वालियर के दो राजे हुए ने, जीवा राव सिंधिया, माधो राव सिंधिया। अपने टाइम ते राजे महाराजिਆਂ ਕੋਲ धन पदार्थ के सारे साधन होंदे सी और धन इन्ना कुछ सी कि जिस टेबल के उपर बैठ के, कुर्सियां के उपर बैठ के रोटी खाते सी, उस टेबल नूं 40 मन सोना लग्या होया। चांदी के सोने के बर्तन ने। और अज वो राज भाग नहीं रहा, वो राजे भी नहीं रहे। विलास पैलेस जीवा राव सिंधिया, माधो राव सिंधिया राजे सी, अज वो नहीं है। उत्थे हुण उन्हां दे घर नूं देखण वास्ते, उन्हां दे उस राज भाग नूं देखण वास्ते सरकार ने उन्होंने म्यूजियम बना दिता है। उस घर में लोग देखते हैं, टिकट खर्चते हैं, देखते हैं। सोने दीयां कुर्सियां, सोने के बर्तन, सोने चांदी का टेबल, चांदी के चमचे। सतगुर महाराज पातशाह कहते ने ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे वसूरे। सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीड़े। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का फरमान है जैत श्री राग के अंदर। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने कि जेकर रब भुल जाता है, सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने ग्रह रचना अपारंग मन बिलास स्वादन रसे। ग्रह रचना अपारंग के अर्थ होंगे ने घर बहुत सुंदर होवे ते खान पीन के लोड़ां दे सारे साधन उत्थे मौजूद होवे। ते सतगुरु महाराज कहते ने कदांच न सिमरंत नानक ते जंत विष्टा किरमै। कदांच कदे भी रब नूं चेते नहीं किया। सतगुरु महाराज कहते ने बस विष्टा दे गंदगी का कीड़ा है, होर कुछ भी नहीं। लोग कहते होंगे बड़ा अमीर है, बड़ा धनाढ़ है, बड़ा पैसे वाला है। सतगुरु महाराज कहते ने नहीं, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे। सेज कहते ने बिस्तरा, सुंदर बिस्तरा होवे, सुंदर सेज अनेक सुख। सुख एक नहीं अनेकां कोल होवन। रस भोगन पूरे। रस कहते ने स्वाद नूं, किसी भी वस्तु का स्वाद चखना है, रस लैना है। कुर्सी का रस है, ताकत का रस है, दौलत का रस है, शरीर का रस है, वासना का रस है, कोई भी रस है। रस भोगन पूरे, हरेक रस जिहड़ा कोल मौजूद है। ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। असी घर बनाने इट्टां दा सीमेंट कंक्रीट का बना देने। कहते ग्रह सोयन सुंदर सोने का घर होवे। अज तक सोने का घर किसी ने बनाया नहीं, इको ने बनाया सी, रावण ने लंका सोने की बनाई सी। सतगुरु महाराज उत्थे कहते ने मूर्ख रावण क्या ले गया। कहते रावण भी मूर्ख सी, एवें हंकार दे विच सोने की लंका बना लई, वो लैके थोड़ी नाल गया है। सतगुरु महाराज कहते ने सुंदर ग्रह सोयन चंदन सुगंध। घर सोने का असी पेंट करते हैं, कहते चंदन का लेप किया होवे। चंदन पेंट तो किते महंगा है। चंदन सुगंध, सुगंधी घर दे विच चंदन दी होवे, फ्रॉगनेस चंदन दी होवे, खुशबू आउंदी होवे चंदन दी। सजावट करने वास्ते कच नहीं, आर्टिफिशियल कोई चीज़ा नहीं, लाए मोती हीरे। मोती ते हीरे ला के घर की सजावट की होवे।
ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहीं वसूरे। जो भी मन दे विच आ जे उही मन की इच्छा पूरी हो जाए। मन इच्छे सुख मानदा हरेक सुख का साधन कर च होवे। किश नाहीं वसूरे कोई चिंता ना होवे कोई फिक्र ना होवे किसी किस्म का डर ना होवे कोई भै ना होवे। किश नाहीं वसूरे सो प्रभ चित ना आवे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते जे रब चेते विच नहीं आया घर सोने दा है सेज सुंदर है सुख अनेक ने रस भोगदा पिया है। मन दे विच जो इच्छा आउंदी वो पूरी हो जाती है। किश दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं कुछ चिंता नहीं कुछ फिक्र नहीं सो प्रभ चित ना आई। पर एक गल है कि जे रब चेते विच नहीं ना आउंदा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने विष्टा के कीड़े केवल गंदगी का कीड़ा है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह कहते हैं कि जो कोई रब नूं भुल जाता है कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे उनके ते ये दोष लगता है कि तू रब नूं भुल गया सी। फिर सज़ा की मिलती है उन्हां दे नाल मिला दिता जाता जिहड़े विष्टा दे विच कीड़े हुंदे ने। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे कीटां च कीड़ा बना दिता जाता है। दोष लग जाता है कि तू रब नूं भुलिया सी। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। एक पासे सतगुरु महाराज कहते जे सुख बहुत भी होण ते रब भुल जाए तो वह किसी काम दे नहीं। दूसरे पासे सतगुरु महाराज एक बड़ी कमाल की उदाहरण देंदे ने कहते जेकर यकीन होवे रब ते भरोसा होवे रुखो भोजन भूम सैन सखी प्रै संग सूख विहार। भोजन रुखा होवे कोई स्वादला भोजन भी कोल ना होवे रुखो भोजन भूम सैन धरती के उत्ते सौना पै जाए पर मालिक नाल होवे उनकी याद नाल होवे वो प्यारा नाल होवे। कहते प्रै संग सूख विहात उनके प्यारे दे नाल सब तो वड्डा सुख ही कहते जिंदगी का वो हुंदा है जो प्यारा नाल होवे। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते ने बसता टूटी झौंपड़ी चीर सब छिन्ना। रहिंदा कित्थे होवे टुट्टी जी झौंपड़ी दे विच चीर कहते आ कपड़ियां नूं चीर सब छिन्ना कपड़े भी फटे होवन। बसता टूटी झौंपड़ी चीर सब छिन्ना मित्र न इठ तन रूपहीन किस साक न सिन्ना जात न पात्रो पात न आदरो उद्यान परमीना। कोई उच्ची जात भी ना होवे बंदा हंकार जात का भी कर लैंदा है कि मेरी जात बड़ी उच्ची आ। पत कोई इज्जत मान करने वाला भी ना होवे कोई आदर भी ना देंदा होवे। उद्यान परमीना उद्यान कहते ने उजाड़ दे विच लोग शहरां च रहिंदे ने कहते उजाड़ दे विच रहिंदा होवे उद्यान परमीना। मित्र ना इठ तन रूपहीन किस साक न सिन्ना ना कोई मित्र होवे ना कोई रिश्तेदार होवे। फिर हंकार एक गल होर दा हो जांदा कई बारी मित्रां ते हंकार हुंदा है कि फलाना मेरा मित्र है फलाना मेरा दोस्त है फलाना अफसर मैनूं जान पछाण वाला है। सतगुरु कहते ने ये भी ना होवे इस गल का भी हंकार नहीं कर सकता कि मित्र मेरे बड़े वड्डे ने रिश्तेदार मेरा बड़ी पहुँच वाला है। मित्र ना इठ तन धन भी कोई कोल नहीं। हंकार धन का भी हुंदा है हंकार करने वास्ते हुण धन भी कोल कोई नहीं है। मित्र ना इठ धन रूपहीन फिर हंकार हुंदा है रूप का कि मैं सोहना बहुत हाँ। सतगुरु महाराज कहते ने रूपहीन रूप भी कोई चंगा नहीं हंकार उस गल का भी नहीं कर सकता। किस साक ना सिन्ना कोई साक सिन्ना कोई साथी संगी वो भी कोई साथ देने वाला नहीं। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने पर हम देखो रूप भी कोल कोई नहीं इज्जत भी कोई नहीं करता पिया आदर कोई नहीं देंदा पिया जात भी उच्ची नहीं धन भी कोल कोई नहीं वस्त्र भी पाटे हुए पाए ने रहिंदा भी कुल्ली दे विच पिया शहर च भी नहीं रहिंदा उजाड़ च उद्यान च रहिंदा पिया है। पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना। वो सारी सृष्टि का राजा है जिंदे मन दे विच नाम वस गया जिंदे मन दे विच रब वस गया तिसकी धूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। सतगुरु महाराज कहते जे उनके चरणों की धूड़ मिल जाए सतगुरु कहते जीवन सफला हो जाता है।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਹਿਮਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਿਮਾ ਖਾਨ ਛਾਪਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਮਿਲਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਅਜੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨ ਛਾਪਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਖੋਲ੍ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ, ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚੌਂਪੜੀ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਦਾ, ਛਪਰੀ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ, ਫਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਮੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਿਆਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਣਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਸੀ, ਨੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਮ ਪਾਪੀ ਹਮ ਬਖਸ਼ਨਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਨਾਰ। ਸਿੱਖ ਲਾਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰਪਾਣੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਨਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਨਾਰ।
सतगुरु गुरु हरराय साहब कहते उत्थे प्यार जिथे होवे उत्थे नेम टुट जाते, उत्थे नेम की कोई लोड़ नहीं रह जाती। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी प्यार दे बजे हुए उस घर दे विच पहुंचे तो उन्हें प्यार के अथरूआं दे नाल विराग दे विच आके भाई हेमा जी ने सतगुरु महाराज पातशाह जी के चरण धो दिते। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी अंदर आए, अंदर आके सतगुरु महाराज पातशाह जी उत्थे बैठे जिस मंजी ते बैठ के कदी वो गुरु नूं जपदा सी। ये हकीकत हुंदी है कि जिस थान दे उत्ते जित पार ब्रह्म चित आया, जिस थान दे उत्ते बैठ के रोज़ गुरु नूं चेते करोगे गुरु उस थान ते आके बैठ जाता। जिस हिरदे दे विच गुरु नूं रोज़ चेते करोगे गुरु उस हिरदे उस मन दे विच आके बैठ जाता। क्योंकि गुरु नूं जपना, गुरु नूं चेते करना, गुरु की याद करी जाना, इनका अर्थ है कि गुरु वास्ते सेंध विछाउणी। गुरु तो रोज़ उडीकदा है कि सिख कवे सतगुरु के आ मेरे मन दे विच बैठ, पर हुण कहंदे आसन एक आ, उंदे ते तू काम नूं बिठाया है, उंदे ते क्रोध नूं बिठाया है, उंदे ते हंकार नूं बिठा के बैठा है, उंदे ते लोभ नूं बिठा के बैठा है, उंदे ते वासनावां नूं बिठा के बैठा है। हुण जिथे हंकार बैठा होवे उत्थे निरंकार किवें बैठ सकदा है, जिथे काम बैठा है उत्थे राम किवें बैठ सकदा है। सतगुरु महाराज कहते ने आसन एक ही आ ते एक आसन ते एक बैठ सकता है, जां ते अधर्म नूं बिठा ला उत्थे, जां तू धर्म नूं उत्थे बिठा छड़। सतगुरु महाराज कहते ने आसन उही सी जिस आसन ते कदी बैठ के रोज़ भाई हेमा जी बानी पढ़िया करते सी। अज गुरु अर्जन देव महाराज उस थान ते बैठे जिथे रोज़ सुखमनी पढ़ी जाती सी, अज उत्थे सुखमनी उचारण करने वाला आके बैठ गया। अज उत्थे वो बैठा है जिंदे मुखार बिंद तो सुखमनी पढ़ी गई सी। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने इतिहास कहता है, रिवायत कहदियां ने कि सतगुरु महाराज ने उत्थे आप बैठ के सुखमनी साहिब का पाठ किया। और गुरबानी दे विच एक शब्द जो इतिहास बन गया, हुण है तां टुट्टी जी छपड़ी ते गरीब जिहा घर, पर सतगुरु महाराज ने उत्थे बाणी का शब्द उचारण किया। अज उत्थे गुरु घर का एक बहुत बड़ा अस्थान बनया। भाई हेमे का घर गुरु का घर बन गया। भाई हेमे की छपरी छपरी नहीं रही, छापरी छाप हो गया। सतगुरु महाराज जी ने उत्थे फरमान जिहड़ा सी हुक्मनामा शब्द उचारण किया। राग सूही महला पंजवां कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जामह गुण गाए कित ही काम न तौरहा, जित प्रभ बिसराए आनंद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए जल जाओ ये बचपना माया लपटाए। कहते गरीबी दे विच भी आनंद है जे संगत दे विच है, जे नाम दे विच है। जल जाओ यह बड़पना माया लपटाए, जिहड़े माया दे विच लपटे पए ने, माया की चादर की बुकल मार के बैठे ने। सतगुरु महाराज कहते ने ये वड्डेपन नूं की करना है, साड़ना है ऐसे वड्याई नूं। पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतो खाए, भावें वो हाथ ना पीस के दो प्रशादे सकता पिया है, भावें वो मेहनत करने वाला है, भावें वो अत दा गरीब क्यों ना होवे। सतगुरु कहते ने ऐसो राज ना किते काज, जित नह तृप्ताए। कहते राज नूं की करना जे तृप्ति नहीं बंदा हुंदा, अंदर ही संतोख नहीं आउंदा पिया, अंदर तृष्णा की अग नहीं बुझदी पई। नगन फिरत रंग एक कै वो शोभा पाए। हुण सतगुरु महाराज कहते ने कपड़े भी तन ते कोई नहीं, बिल्कुल नंगा वांगू रहिंदा, कपड़े कोई नहीं बहुते तन ते पाउण वास्ते, पिंडे नंगे तुरना फिरना पैंदा, केवल तन ढकण जोगा थोड़ा बहुत कपड़ा पहन के रखिया। सिखां दा इतिहास जदों पढ़ो, जदों सिख जंगलों के विच रहिंदे सी, जदों सिख दरख्तां दे उपर सौंदे सी, घोड़ियां दीयां काठियां सिखां दा घर सी, उदों सिखां दे तन ते केवल कशहरे रह गए सी, तन ते पाउण लई बहुते कपड़े नहीं सी। सर्दी गर्मी बिल्कुल उन कशहरियां दे विच गुजारी। हथियार जिहड़े सन वो भी कोई बहुते काम दे नहीं सी, उन्होंने भी म्यान की थां ते टाकियां लपेटियां हुंदियां सी हथियारां नाल। प्रशादा भी कदी नहीं सी मिलता, जे किते मिलिया तो छक लैंदे सी वंड के, जे नहीं मिलिया तो दरख्तां दे पत्ते खा लैने, छिलड़ां खा लैनियां।
पानी असीं अज फिल्टर का पीने, बहुत स्वादला पीने, उतों पानी पीना जिथे पंछी भी विठा कर देंदे सी, छप्पड़ां दे पानी पी के गुजारा करना। पर सतगुर कहते हैं नगन फिरत रंग एक कै वो शोभा पाए। उन्हां दी वडियाई अज भी हुंदी पई अते कल जुगां जुगंतरां तक रहनी आ। पाट पटंबर बिरथियां हंजह रच लुभाए। पाट कहते ने रेशम नूं। हुण जे शरीर दे उत्ते रेशम का कपड़ा भी पाया होवे तो सतगुरु महाराज कहते वो भी व्यर्थ आ जे रब भुल गया है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने जित पार ब्रह्म चित आया, जिस थां ते जिस जगह ते रब चित्ते आ जाए। ਹੁਣ सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने संगत ਨੂੰ बड़ी वडियाई ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ संगत हर प्रभ वसे जीओ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ नदर निहाल विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। संगत दे विच बैठ के जपिया होया नाम कदी भी व्यर्थ नहीं जाता। सतगुरु महाराज कहते जिथे बैठिया रब चेते आ जे, रब की याद आ जे, सिमरन हो जे, वाहिगुरु मुखों निकल जाए, सो घर दईए वसाया। सतगुरु महाराज कहते परमेश्वर ने कृपा करके वो घर जिहड़ा सी दया दे नाल वसा दिता है। दया सतगुरु महाराज ने कहते ने कीती है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने कहा कि एक घर परमात्मा की कृपा के नाल वसिया है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने असल दे विच ये जिहड़ा शब्द है ये उस वेले भी उचारण किया जदों हरमंदर साहब जिहड़ा सी बन के तैयार हो गया सी। सतगुरु कहते ने सुख सागर गुर पाया। सुख ते सागर, सुखां दा समुंदर जिहड़ा सी वो गुर पाया। वो गुरु सुखां दा समुंदर है ते हुण गुरु मिल गया है तां सहसा सगल मिटाया। जिन्ने भी अंदर सहसे सी, जिन्ने भी अंदर शंके सी, जिन्ने अंदर भरम सी, जिन्नी अंदर भटकना सी, कहंदे वो सारी ही खत्म हो गई। हर के नाम की वडियाई, कहंदे ये असल दे विच परमात्मा दे नाम दी अपनी ही वडियाई है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ कोई न जाने, नाम जपत ओह चौं कुंट माने। प्रभ की अकथ कहानी। सतगुरु महाराज कहते उस मालिक परमात्मा की कहानी के इत्थे अर्थ ने कि उनकी महिमा, उनकी वडियाई। सतगुरु महाराज कहते ने बयान तो परे है। अकथ के अर्थ होंगे ने जिन्हों कथन नहीं किया जा सकता, जिन्हों लफ्ज़ों के विच बयान नहीं किया जा सकता, अखरां दे विच लिखिया नहीं जा सकता। सतगुरु कहते जन बोले अमृत बाणी। गुरु के प्यारे परमात्मा के भगत जिहड़े ने, जन जिहड़े ने, सेवक जिहड़े ने, वो उस मालिक की बाणी नूं गौना करते ने। नानक दास वखानी। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह कहते ने मैं नानक ने, उस परमात्मा के सेवक ने, उस परमात्मा वाहिगुरु के दास ने। ये विख्यानी तो भाव है कि इस गल नूं आखदा पिया हाँ, ये बाणी उचारण करदा पिया हाँ। गुर पूरे ते जानी कि गुरु पूर्ण गुरु जिस दिन मिलता है उनके राही ये दात प्राप्त होती है। फिर परमात्मा की कृपा वरतदी है, परमात्मा चित्त दे विच आके टिकदा है। तो जिस चित्त दे विच आके परमात्मा टिकदा है, सतगुरु महाराज कहते हैं वो चित्त, वो घर, वो जीवन सफला हो जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत करन। गुरु साहब कहते हैं सुखां दा सागर गुरु है तो गुरु तो सुख मिलते हैं, पर मिलणगे तां जेकर असी गुरु गुरु जपना करांगे, गुरु के अनुसारी होकर चलांगे। जो गुरु उपदेश दिंदा है उस उपदेश से तुरांगे तां जीवन भी सफला होएगा तो जिंदगी दे विच सुख भी होणगे। जन्म ते मरण भी सवारिया जाता है। लोक सुखीए
पर लोग सुहेले हो जाते हैं। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत करन। बाणी पढ़द्या होया जीवन सफला हो जाए। बोलद्या होया बेअंत भुलां दी खिमा। मिलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू